ریاست کے دیگر شہروں کی طرح مہاراشٹر کے شہر ناندیڑ میں بھی آج عید الفطر کا نہایت جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ ہزاروں فرزندان توحید نے شہر کی دونوں عیدگاہوں میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر عید کی نماز ادا کی۔ الحمد لله رب العالمين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والمؤمنون كل الله أكبر الله أكبر السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر ہر سال کے مقابلے اس بار عیدگاہ پہنچنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وسیع و عریض عیدگاہ میدان بھی ناکافی ہو گیا۔ ہزاروں لوگ نماز میں شریک نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے عیدگاہ میدان پر دوسری جماعت بھی بنائی گئی اور دوسری جماعت میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ خدیم شہر کی بڑی عیدگاہ پر مولانا سعد عبداللہ ندوی نے نماز عید کی امامت کی، جبکہ خطبہ قاضی صدیق محی الدین نے دیا۔ وہیں دوسری طرف مفتی خلیل الرحمان قاسمی اور ایڈوکیٹ MZ صدیقی نے مجموعے سے خطاب کیا۔ نماز کے اختتام پر مفتی خلیل الرحمان قاسمی نے اجتماعی دعا کی، جس میں ملک میں امن و امان، بھائی چارہ، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم ملکوں میں پھیل رہی بدامنی اور دہشت گردی کی پرزور مذمت کی گئی اور بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد مسلم بھائیوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ علماء کرام نے لوگوں سے نصیحت کی کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں عبادتیں اور نیک اعمال کیے گئے، دیگر ایام میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آج عید ہے اور ایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد عید کے لیے، عید کی خوشی کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے شہر سے باہر ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ملے۔ عید کا مقصد اصل میں دنیا کے اندر صرف ظاہری خوشی کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کا حساب لینا۔ ہر انسان اور خاص طور سے امت مسلمہ اپنی زندگی کا حساب لے کہ ہم نے سال بھر میں کیا کیا اور آئندہ سال تک ہمیں کیا کرنا ہے، کس راستے سے چلنا ہے۔ جو راستہ آج ہم نے عرض کیا ہے اپنے بیان کے اندر، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے آج کل کے زمانے میں، اور کسی چیز سے مایوس یا کسی حالات کی وجہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر اگرچہ کہ مصائب مصیبتیں ہیں، لیکن حالات ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اگر ہم جد و جہد اور محنت اور اپنی کوششیں جاری رکھیں گے تو ہم ایسے حالات میں کامیاب ہو جائیں گے۔
उम्मत मुस्लिमा को एक और नेक होने की ज़रूरत है और माशरा अपना दुरुस्त करने की ज़रूरत है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद की नमाज़ होने के बाद सभी को मुबारकबाद, सुनने वालों को भी और यहाँ के लोगों को भी। बड़ी ही ईद जो है कीमती बरकत वाली ईद हुई अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून के साथ, दुआओं के साथ। हमने जो है 1 महीने के रोज़े रखे, तरावी पढ़ी और जो है सदका दिया, ज़कात दिया, बहुत से नेक काम जितने हैं जो है, जैसा कि मराठी में पवित्र महीना कहा जाता है, यानी बहुत नेक महीना है। तो इस तरीके से अल्लाह ने हमको ये ज़िंदगी में मौका दिया है। तो मेरे तरफ से जितने भी सुनने वाले हैं उनको ईद की मुबारक। हमने इस ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों को सिर्फ एक ही पैगाम भेजा है कि वो दीनी दुनियावी तालीम की तरफ तवज्जो करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। अल्लाह तबारक तआला का बड़ा एहसान है कि उसने अपने किताब अज़ीम में फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तौफ़ीक़ दी। और अल्लाह तबारक तआला का एहसान है कि उसने उम्मत मुस्लिमा को सारी दुनिया के अंदर तपती हुई धूप में रोज़े रख कर अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका अता फरमा है। दरअसल अल्लाह तबारक तआला चाहते हैं अपने बंदों से कि इस दुनिया में रहते हुए वो अल्लाह का भी ख्याल रखें, अल्लाह के बंदों का भी ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर हमने रोज़े रख कर अल्लाह तबारक तआला के हक़ को अदा किया है, वैसे ही बंदों के हक़ को भी हमने जहाँ तक हो सकता है गरीबों, मिस्किनों, मोहताजों को जो है अपने नवाजने की कोशिश की, उन्हें जो है उनकी तकलीफ़ों को, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश की। शहर के मुसलमानों में ईद की मुबारकबाद पेश करने के लिए कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान और नांदेड़ हल्के पार्लिमान के नवमुंतखब बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर, ओम प्रकाश पोकरना, कांग्रेस पार्टी के रुकने असम्बली डीपी सावंत, रुकने कानून साज कौंसिल अमर राजूरकर, जिला एसपी संजय जादव समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थी। तमाम सियासी कायदीन ने शहर के मुसलमानों से मुसाफा किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। मैं आज ईद के मौके पर तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों को दिल की गहराई से बहुत बहुत ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सब के लिए आज से एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि सभी लोग जो लोग अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को, भगवान को मानते हैं, वो आज ईद के मौके पर जब पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में ईद अल्लाह ताला को याद रखते हुए बड़ी खुशियों के साथ में मनाई जा रही है। हम भी इस आज ईद के मौके पर हमारे मुस्लिम भाइयों की इस खुशी में आज हम लोग शामिल हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमारे देश में शांति और सुकून से आने वाला समय गुजरे, गरीबों को निश्चित तौर पर अल्लाह की मेहरबानी बख्श मिले उनको, और सभी के ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाले समय में मिलती रहे, ये अल्लाह ताला से हम मांग करते हैं और बहुत बहुत बधाई मुस्लिम भाइयों को करता हूँ। नहीं, आज बहुत खुशी का दिन है, रमज़ान ईद है। रमज़ान ईद के मौके पे सभी मुस्लिम भाई और सभी हिंदू भाई को भी ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और पूरा 1 महीना लोगों ने रमज़ान पकड़ के यहाँ हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी है और वो दुआ कबूल करे, इसी में प्रार्थना करता हूँ और इसे सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की दुआ है। आप अभी भी सांसद बने हैं, तो किस तरह का क्या काम करना चाहते हैं? खासतौर से माइनॉरिटीज़ भी कुछ उम्मीदें आपसे लगाती हैं। बराबर, मैं सांसद तो पहली बार बना हूँ। नांदेड़ के जो मसले हैं वो पूरे समझ के लेने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर जो भी सवाल आते हैं, जो भी मसले हैं, इंडस्ट्रीज़ का है, पानी का प्रॉब्लम है, रेलवे के प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम के लिए मैंने पहले से आप देखे होंगे कि शुरुआत की है। पहला पानी टंचाई का जो मसला है उसके बारे में मैं हर तालुके में जाके एक मीटिंग ले रहा हूँ और वो पानी का मसला हल करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। नांदेड़ में पानी कम नहीं गिरेगा, इतना मैं आपको यहाँ आश्वासन देता हूँ। ईद के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया ने भी शहर में शानदार सिक्योरिटी इंतजाम किए। जिला एसपी संजय जादव बनफ्से नफीस ईदगाह मैदान पर मौजूद थे। उन्होंने भी शहर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की, साथ ही एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहकर भाईचारा बनाए रखने की नसीहत की। महीना भर के रोज़े रख के आज का ईद की जो रमज़ान ईद है, इस रमज़ान ईद के अवसर पर मैं आप सभी भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए और सब एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहिए, बस यही मेरी आप सभी लोगों से दुआ है। बच्चों के लिए भी ईद की खुशियों की अहमियत कुछ और ही होती है। ईद के दिन तमाम अफराद अपने अपने घर के बच्चों को ईदी के तौर पर रकम देते हैं।
ईदी की रकम से बच्चे अपनी पसंद की चीजें, खाने पीने की अशिया और खेल कूद और मौज मस्ती करते हैं। बच्चों की इसी दिलचस्पी को देखते हुए देगलूरना का पानी टाकी के मैदान में झूलों का नज्म किया गया। यहाँ भी कसीर तादाद में बच्चे पहुंचे और उन्होंने ईद उल फित्र का पूरा लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज।